Welcome, dear students. I hope you all will be fine. Today we will discuss another very important topic in genetics, that is inheritance of X-linked recessive diseases. In this we will discuss how the inheritance of what is hemophilia, what is color blindness, then we will discuss the inheritance of these two diseases. Now let us discuss. First point you will keep in mind, what does X-linked recessive disease mean? It is basically a type of, it is actually a type of sex-linked disease. And what does the sex-linked disease mean? It means the inheritance of diseases. It means the inheritance of diseases controlled by those genes which are actually located on the sex chromosomes, and you know, in the body there are two sets of the chromosomes. Normally a cell contains 46 chromosomes, and those 46 chromosomes are actually classified into two groups. First one is called autosomes. They are also called as the somatic chromosomes. Somatic chromosomes are those chromosomes which are present in the body cells except the germ cells, and that includes the 22 pairs. Another important set of chromosomes that is found in the germ cells, that are called sex chromosomes. Sex chromosomes are also called as the allosomes. ALLOSOMES, allosomes, and that includes only the one pair. And this one pair is different in both the genders. That means in case of the male, the sex chromosomal complement is always heterogametic, that means X and Y, while in case of the female is always homogametic, that means it contains two sets of chromosomes. So the inheritance of diseases which are controlled by those genes which are located on the sex chromosome, that means either on this X chromosome or on the Y chromosome, that is actually called the sex-linked diseases. Now what does X-linked mean to say? X-linked means here, it means we don't have to deal with the genes that are located on the Y chromosome, because then it becomes the Y-linked diseases. Y-linked diseases are those diseases in which the genes are located on the Y chromosome. Those genes are actually called, which are present on the Y chromosome, you'll keep in mind, those are called holoandric. They are actually called the holoandric genes. Holoandric genes are those genes which are located on the Y chromosome. But here we don't have to discuss the case of Y-linked inheritance. Here we will discuss only the what we call as the X-linked recessive disease. Now X-linked recessive disease, what does it mean? It means those diseases which are controlled by those genes which are located on the X chromosome. Now what does recessive mean? You know, in the male possesses the XY chromosome, while as the female possesses the what we call as these two sets of these X chromosomes. So if a defect occurs in the gene here, for example, if this is a gene here, I will mark this. For example, if this is a gene, if this will become defective, then the male will show the what we call as the phenotype. It will show the phenotype, or we can say it will show the type, that kind of the disease. Here we will see if a gene is, for example, defective here. If this gene is defective here, but you know, this female contains another copy of this X chromosome, this gene that will be present on this chromosome, this is healthy gene. Suppose this will be the healthy gene, then this female is called, it is normal. It will be normal, but it will be what? It will be carrier. Why? Because one copy of the gene that is located on this X chromosome, it is no doubt defective, it is no doubt mutated, but another copy of the same gene is actually healthy gene. It's a healthy copy of the gene, so that healthy copy of the gene will nullify the effect of this defective gene. So it will be normal, but it will be carrier. Here the male contains only one X chromosome, it contains Y chromosome. So if a gene becomes defective here, it will show the type of the phenotype. But this female can also show the phenotype or the disorder only and only when, for example, this is one X chromosome. If this gene is, for example, defective, when on the another chromosome this one is also defective, then it will become what? Then it will express the what we call as the phenotype, or what we call as the disorder. You just keep in mind. Now we will
So what does it mean to say? It means the recessive X-linked recessive disease they will try to affect more males as compared to the females. Why? Because males possess only one X chromosome, or we can say males possess only one copy of the gene located on the X chromosome, while the female will be normal, but they will be carrier, but they can express the phenotype. They can become defective only and only when both copies of the gene are defective in both what we call the X chromosomes. Let me make you clear by discussing the inheritance pattern of these two types of the diseases. Two famous examples whenever we talk about the X-linked recessive disease, we discuss these important diseases. One is called hemophilia, second is called this color blindness. What does hemophilia mean to say? HAEMOPHILIA. Hemophilia का क्या मतलब हुआ? It means it is basically a type of X-linked recessive disease which is characterized by delayed blood clotting. You know, when an injury occurs or when a cut occurs to the skin, what happens? The blood gets clotted. And the normal time for the blood clotting is 2 to 8 minutes. 2 to 8 minutes is the normal time. Is the normal time for the blood clotting. Now, what happens now for the blood clotting to occur? Normally, how many factors are responsible? You keep in mind, 13 factors. 13 factors are responsible for the process of blood clotting. Those 13 factors are called what? They are called blood. They are called blood clotting. They are actually called blood clotting factors. Blood clotting factors. What these blood clotting factors are actually? They are nothing but they are basically the proteins. They are actually the proteins, and proteins, you know, proteins are basically made by their respective genes. And those genes will be located. They will be located on which chromosome? They will be located on the X chromosome. So it is a basic you have to keep in mind before we will discuss the hemophilia inheritance. So the hemophilia, it is also called as this Royal's disease. It is also called as a Royal's disease because it was found in the descendants of what we call as the Queen Victoria. It is also called as a bleeding disease because once a person suffers from this type of the disease, he shows frequent what you call as a bleeding. His injury does not clot very well. As a result, there is continuous flow of what you call as a blood. There is continuous flow of what you call as a blood. So now, what does hemophilia mean? So hemophilia is basically an X-linked recessive disease which is characterized by the delayed blood clotting. Normal की बात करें तो आपके पास blood clot को कितना टाइम लगता है? 2 to 8 minutes लगते हैं. उसके लिए आपके पास होते हैं responsible 13 factors. वो उनको बोलते हैं blood clotting factors. और वो है क्या actually? They are basically proteins located on the genes present on the X chromosome, not on the Y chromosome. Now this hemophilia जो होता है, hemophilia normally हमारे पास 2 types का होता है. One is called hemophilia A, and second is called HAEMOPHILIA. The second is called hemophilia B. Now let's talk about the difference. Hemophilia A and hemophilia B, these are the 2 types of the hemophilia. Hemophilia A is also called as a classical. It is also called as a classical hemophilia. This one is called Christmas. This is called a Christmas hemophilia, and this hemophilia A, it is characterized due to the deficiency of blood clotting factor 8th. Deficiency of what? Deficiency of 8th blood clotting factor. What does that mean? That means जो आपका X chromosome है उस पे जो जीन होगा वो बेसिकली डिफेक्टिव होगा, और वो ऐसा जीन होगा जो बेसिकली किसको बनाता है? नॉर्मली इस 18th वाले ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को. जैसे मैंने पहले बताया कि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है क्या? एक्चुअली दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स. सो इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया बी में इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट वी कॉल द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9th blood clotting factor is absent in case of the hemophilia B. Now this is very easy to remember. Now let us talk about the inheritance. That is most important. We will discuss how the inheritance of this hemophilia disease takes place. Number one, for example, we will take the first condition. We'll take the first. For example, as I have asked you in my WhatsApp page. For example, we will create the first condition: mating between a normal male with what? With carrier female.
Now let me tell you how you will done this. Normal male with that carrier. Normal male means to say it means it is X and Y. It means it is X and Y. It is normal male. That means on the X chromosome the gene is not defective. It is not defective. Okay, na? Well, as we have to match it with the carrier female. Carrier female means to say that it is X and here it is X. Carrier means one gene of this on the X chromosome, it will be defective. But here we will refer that with the, we will designate that with the H. H का क्या मतलब हुआ? H का क्या मतलब हुआ? H means basically hemophilia. It means the gene that is present on one copy of the X chromosome, it is defective, while as another copy of the gene present on this chromosome, that is a healthy gene, that is a functional gene. That means overall it will be carrier, but it will be normal but carrier female. So this is normal male, this is called the carrier female. This is how you will designate the carrier female. Now we'll simply go for the crossing. First this and this will go for the crossing, so it will become X and X, very easy. ठीक है ना? But this X will it will contain this defective gene H. This first we will cross this, then we will cross this X with that this X. Now it will become X and this X. ठीक है ना? It does not contain any defective gene. Now this Y will make cross with this and this will make a cross with this. So it will become X and Y, but this X contains this defective gene called as the H, and fourth condition will be it will be X and Y. It will not contain any defective gene. Now that is, so we have get the 4 offsprings for the sake of simplicity. These are the 4 offsprings. ठीक है ना? This is daughter. XX, this is daughter, but this is what? This is carrier. This is carrier daughter. This is called carrier daughter. This is carrier daughter. So we can write it on the basis of the percentage. It is 25%. We'll make the sum of these 4 offsprings as 100%. So this is 25% daughter are normal but carrier. This one, this is normal. What? This is normal daughter. This is normal daughter. This is not carrying any of the defective gene, as you are seen, as you can watch from this condition. इसकी अगर बात करें, ये वाली जो थर्ड कंडीशन है, इट इज एक्स वाई, बट दिस इज कैरिंग हियर द एच इज डिफेक्टिव. आप देखिए जरा, ये एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर, ये वाई क्रोमोसोम है. सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी अफेक्टेड. इट इज कॉल्ड अफेक्टेड सन. इट इज अफेक्टेड सन. ये वाला भी यहाँ पर क्या होगा? इट इज 25%. तो ये वाला क्या होगा? 25%. इसका मतलब है अफेक्टेड सन आपका है 25%. अब ये इस फोर्थ वाली कंडीशन को जरा देखिए, ये एक्स और वाई है, इसमें कोई भी जीन डिफेक्टिव नहीं है. सो इट विल बी नॉर्मल. It will be normal son. It will be normal son. So these are the 4 offspring. That means 2 daughters, 2 sons. Out of the 2 daughters, 25% are normal, but they are carrier. Next 25% among the daughters, they are normal, does not carry any defective gene or the mutated gene on the X chromosome. 25%, talking about the sons, 25% sons are affected. 25% sons are affected, while as the 25% sons are what? They are basically the normal. So if we look towards this condition, it means when the female, it means when the mother is here defective. देखिए जरा, इधर आपकी mother जो है वो defective है, normal है but carrier है. So this defective mother has basically transmitted its defective gene to what? To the son. It cannot transmit the disease to the daughter. It cannot transmit the disease to the daughter. So if the mother is having the disease, it can transmit that disease to what? To the sons. So that is a very important condition in case of the X-linked recessive disease. You will keep in mind कि अगर मदर में आपके पास डिजीज है तो वो किन को जाएगी? वो सन्स को जाएगी. ठीक है ना? नंबर सेकंड, अगर फादर में है, अगर मान लीजिए फादर में है, तो फादर से वो जाके किस में जाएगी? वो फिर जाएगी आपके इन जो डॉटर्स होंगे. दिस इज कंडीशन यू विल कीप इन माइंड. सो मदर में अगर कोई डिजीज है तो वो जाके लगेगी किनको? सन्स को. अगर फादर में है तो वो डॉटर में लगेगी. ये याद आप हमेशा याद रखोगे. अगर फादर में कोई डिजीज है, वो कभी भी नहीं, मतलब इनके साथ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की मैं बात कर रहा हूं. अगर फादर में डिजीज है, that will never will be transmitted to the sons. These are the 3 conditions you will keep in mind. So this is the first case. Now let us make the second case. You just keep in mind. इसको मैं जरा मिटा देता हूं ताकि स्पेस में मिल जाए. नंबर सेकंड कंडीशन, दूसरा मैटिंग ले लेते हैं. मैटिंग बिटवीन व्हाट मैटिंग बिटवीन, सपोज हम लेंगे नॉर्मल मेल को मैटिंग कर लेते हैं. किस वाले से? विद दैट ऑफ द अफेक्टेड.
with that of the affected what, with that of the affected what we call as the female, affected female। जरा इस वाली कंडीशन को देखिए, देखिए नॉर्मल मेल का क्या मतलब हुआ, नॉर्मल मेल मीन्स इट इज एक्स, इट इज वाई, इट इज नॉर्मल मेल, no gene is defective on the X chromosome, now it will went for the mating with that of the affected female। affected female का क्या मतलब हुआ इस वक्त, affected female का मतलब हुआ अब यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर भी आपके पास एक जीन डिफेक्टिव है और इस वाले क्रोमोसोम पे भी जो जीन है इसकी सेकंड कॉपी जो वो भी डिफेक्टिव है। सी का मतलब हुआ इधर सी नहीं, हम पहले इसकी डिस्कस कर लेते हैं। एच का मतलब हुआ हीमोफीलिया, ठीक है ना। तो अब ये आपका आ गया डिफेक्टिव, ये आ गई आपकी इफेक्टेड फीमेल। अब इसको जरा देखिए तो ये बन जाएगा, पहले ये इसके साथ करेगा क्रॉस तो एक्स एंड एक्स, नाउ दिस वन इज एच, दिस वन इज एच। नाउ अब ये वाला इसके साथ करेगा तो ये एक्स और ये एक्स आ गया तो ये भी एच है बेटा, ठीक है ना, सेकंड कंडीशन। थर्ड अब ये वाई इसके साथ करेगा तो इसको हम लेते हैं एक्स एंड वाई, तो ये वाला यहाँ पर आपका जीन डिफेक्टिव है और ये वाली दे वाई एंड एक्स, इसका मतलब है एक्स एंड वाई, और ये वाला भी आपका यहाँ पर है डिफेक्टिव। आप जरा देखिए, आप दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जरा इसको जरा देखिए, ये है क्या, ये आपका नॉर्मल बट कैरियर डॉटर, नॉर्मल बट कैरियर डॉटर, ठीक है ना, बिकॉज वन जीन इज डिफेक्टिव ऑन द एक्स क्रोमोसोम बट अनदर जीन is a healthy gene, is a normal gene on the second copy of this X chromosome, so it will be normal but carrier daughter 25%, 25%। इस सेकंड कंडीशन को जरा देखिए, ये भी क्या है, ये नॉर्मल बट कैरियर डॉटर है, फिर से 25%, ठीक है ना बेटा। नंबर थर्ड, अब ये देखो जरा, ये देखो ये क्या है, ये है अफेक्टेड, ये है बेटा अफेक्टेड सन, अफेक्टेड सन, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर वाई क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर ये जीन डिफेक्टिव है तो इसकी सेकंड कॉपी है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर एक डिफरेंट क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, तो ये वाला अफेक्टेड सन होगा, तो इट विल बी 25%। ये वाला भी क्या है, ये वाला भी है अफेक्टेड, ये वाला भी है बेटा अफेक्टेड सन, इट विल बी आल्सो 25%। in the sum we can say 50% daughters are what we call the carriers, 50% daughters are carriers and 50% sons are क्या affected। ए का मतलब हुआ affected, affected का मतलब हुआ जिनको ये डिजीज लग गई है, that is the हीमोफीलिया। अब फिर से जरा देखो, अब देखो यहाँ पर मदर जो है, मदर अफेक्टेड है। अब देखो उन्होंने अपनी ये जो डिजीज है वो ट्रांसमिट की है किनको, सन्स को, ठीक है ना, सन्स को। नो डाउट द जीन हैज आल्सो बीन ट्रांसमिटेड टू द डॉटर्स बट दे आर नॉर्मल बट कैरियर्स, दे आर नॉट अफेक्टेड। द डिसऑर्डर, द पर्टिकुलर डिजीज cannot affect these two types of the daughters but that can affect only the what you call the sons, because sons contain only one copy of the X chromosome and the another is what you call the Y chromosome। तो फिर से आप यहाँ देख रहे हो, तो मदर में है डिजीज तो ये किनको लग रही है, ये डॉटर को लग, सॉरी ये सन्स को लग रही है। मदर से जाके हो सकता है कि ये जाए इन डॉटर में, लेकिन वो नॉर्मल होगी लेकिन कैरियर होगी, तो इससे ये आपकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड जरा देखिए, थर्ड कंडीशन देखिए। अब क्या करेंगे हम, अब यहां हम लेंगे ऐसे, हम करेंगे मैटिंग बिटवीन अफेक्टेड मेल विद लेंगे कैरियर, विद लेंगे कैरियर फीमेल, विद कैरियर फीमेल, ठीक है ना बेटा, ये आपकी थर्ड कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो अफेक्टेड मेल का क्या मतलब हुआ, फिर से बेटा अफेक्टेड मेल का मतलब हुआ ये एक्स है सर, ये यहाँ पर वाई होगा सर, तो यहाँ पर आपका जो जीन होगा एच दिट मीन्स हीमोफिलिक जीन, तो वो वहाँ पर अफेक्टेड है आपका, वो म्यूटेटेड है, उसकी म्यूटेशन हो गई है, तो ये वाला जो है कैरियर फीमेल है, इट मीन्स इट इज एक्स। सो कैरियर का मतलब हुआ यहाँ पर ये एच है, एक ही आपकी जीन जो है इस एक्स क्रोमोसोम पे वो अफेक्टेड है, दूसरा वाला जो है वो बेटा वो क्या है, वो नॉर्मल है या फंक्शनल है या हेल्दी जीन है। अब इसको जरा क्रॉस करो, पहले ये करेगा इसके साथ, फिर तो ये एक्स और एक्स बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एच है, ये भी यहाँ पर एच है, ठीक है ना, तो एक कंडीशन आ गई। दूसरी वाली, अब इस एक्स को इस वाले एक्स के साथ क्रॉस करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स एंड एक्स, तो ये यहाँ पर एच है तो ये वाला यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है ना, कुछ सेकंड कंडीशन। नंबर थर्ड, अब इस एक्स और इस वाई को लेते हैं, एक्स और वाई, लेकिन ये यहाँ पर क्या है बेटा, ये यहाँ पर है आपका म्यूटेटेड जीन, ठीक है ना। तो नंबर फोर्थ एक्स एंड वाई, ये वाला नॉर्मल है, एक्स एंड वाई। अब जरा देखिए फर्स्ट कंडीशन, ये वाली आपके ये डॉटर है, क्योंकि आप देखिए जरा ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड डॉटर है। क्यों अफेक्टेड है, क्योंकि इसमें दोनों कॉपीज ऑफ जीन जो दोनों क्रोमोसोम्स पे है वो म्यूटेटेड है या वो अफेक्टेड है, इसका मतलब है ये अफेक्टेड, इसका मतलब हुआ बेटा ये अफेक्टेड डॉटर है, अफेक्टेड डॉटर है। और कितनी परसेंट हम लिखेंगे इसको, 25%।
ठीक है ना। तो ये दूसरी कंडीशन लेंगे, ये जरा देखिए, ये क्या है, एक ही कॉपी है जीन की इधर अफेक्टेड हो रही है, लेकिन दूसरी कॉपी फंक्शनल है, हेल्दी है। तो ये वाली क्या होगी, ये वाली कंडीशन बेटा, ये वाली होगी कैरियर डॉटर, ये वाली होगी कैरियर डॉटर। फिर से कितनी परसेंट है, 25% है, ठीक है ना बेटा। तो ये थर्ड कंडीशन, ये आपका है अफेक्टेड, सीधी से आप देख रहे हो, अब आप समझ गए होंगे, ये आपका अफेक्टेड सन है, आप अफेक्टेड सन है, क्योंकि यहाँ पर एच आपका ये जो जीन है ये वो अफेक्टेड है। तो ये है आपकी 25%। अब ये वाले देखिए, अब ये वाला जो है ये नॉर्मल सन है, यहाँ पर नॉर्मल सन है आपका 25%। अब हम देखें ज़रा, देखिए अब इसमें आप देखिए ज़रा, आप फिर से थोड़ा कंसंट्रेट करिए, ये मैंने इधर लिखा अफेक्टेड मेल, अब मेल अफेक्टेड है, लेकिन अब कौन अफेक्ट हो रही है यहाँ पर, डॉटर यहाँ पर अफेक्टेड हो रही है। नो डाउट सन इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, बट ओनली द 25%। सो इफ देयर इज a disease that is present on the father, that can be transmitted to only the daughters. But if the affected male is making a cross with that of the carrier female, only the 25%, here you will see only the 25% sons will be affected, while as the 25% sons they will be normal. So फिर से यहाँ पर, अब यहाँ पर डिफेक्टिव क्या है, अफेक्टेड यहाँ पर आपका फादर है, तो फादर जब डिफेक्टिव होगा तो वो अपनी डिजीज जो होगी वो ट्रांसमिट करेगा किसको, किनको, डॉटर्स को। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर मदर में आपकी डिजीज है तो मदर से जाके वो जाएगी किस में, सन्स में। अगर फादर में कोई डिजीज है तो वो फादर से होके किस में जाएगी, डॉटर्स में जाएगी। these are the three conditions you will keep in mind while discussing the inheritance pattern of hemophilia. Now same is the case with that of the what we called as the color blindness. Now let me first tell you what does color blindness mean. color blindness का क्या मतलब हुआ, color blindness means to say it is also color blindness. कलर ब्लाइंडनेस फिर से क्या है, आपके कलर ब्लाइंडनेस आपकी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, आरडी मींस रिसेसिव डिजीज, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड से अब होता क्या है इस कलर ब्लाइंडनेस में, अब पहले मैं आपको नॉर्मल बताता हूं क्या होता है। नॉर्मल अगर हम देखें, नॉर्मल विजन की बात अगर हम करें, नॉर्मल विजन की बात करें तो आपके आईज होते हैं, ठीक है ना। आईज में आपका ये एक इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं बेटा रेटिना में आपके दो किस्म के फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक को बेटा बोलते हैं कूनस और दूसरे को बोलते हैं बेटा रॉड्स, ठीक है ना। ये आपको पता ही है। कूनस जो होते हैं ये किस लाइट में काम करते हैं, दे वर्क इन द ब्राइट लाइट, while as the rods they work in the what we call as the dim light, ठीक है ना। लेकिन ये जो कून्स और रॉड्स है क्या बेसिकली, ये यू हैव टू कीप इन माइंड, दीज चाहे रॉड हो चाहे कून्स हो, ये है क्या बेसिकली, ये रॉड्स और कून्स जो दीज आर फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स। Photoreceptor pigments means to say these are actually proteins, and these proteins, protein is basically encoded again by the gene, and that gene will be present on which chromosome, on the X chromosome, not on the Y chromosome, just like we have seen in the case of what we call as the hemophilia. So अब ये जो कून्स होते हैं, कून्स आपके पास थ्री टाइप्स के होते हैं, कून्स जो होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं रेड कून्स, ठीक है ना। सेकंड होते हैं आपके बेटा ग्रीन कून्स और थर्ड होते हैं आपके बेटा ब्लू कून्स, ठीक है ना। अब अगर इस रेड कून्स की डेफिशिएंसी पड़ गई, इस वाले फोटो रिसेप्टर की अगर डेफिशिएंसी पड़ गई, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी, उसकी वजह से एक टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस होगी, उसको बोलते हैं बेटा प्रोटैनोपिया, PROTANOPIA, प्रोटैनोपिया। अब अगर ग्रीन कून्स की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे हो जाएगा ट्राइटैनोपिया, ड्यूटेरानोपिया, DEUTRANOPIA, ड्यूटेरानोपिया। अगर ब्लू कून रिसेप्टर की डेफिशिएंसी पड़ गई तो उससे हो जाएगा ट्राइटैनोपिया, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए आप ख्याल रखोगे तो नॉर्मल विजन के लिए आपके पास कून्स होते हैं, रॉड्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं आपके इस रेटिना में। और एक आप पॉइंट याद रखोगे कि ये जो कून्स जो होगी इनकी हायर कंसंट्रेशन एक रीजन में पाई जाती है, उसको बोलते हैं फोविया, FOVEA, फोविया सेंट्रालिस। concentration of cones is highest in this region of the retina, that is called fovea centralis. तो रेड कूनस की डेफिशिएंसी, ये कूनस फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक कूनस चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो चाहे बेटा ब्लू हो, ये क्या है एक्चुअली, these are actually photoreceptor pigments. Those photoreceptor pigments, they are actually made by the what we call as the proteins, and these proteins are actually made by their respective genes, and those genes are
लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम, दे आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो सिंपल सी बात है। अब अगर इस वाले जीन अगर इस वाले जीन की अब म्यूटेशन हो गई या ये डिफेक्टिव हो गया तो ये प्रोटीन डिफेक्टिव हो गया। प्रोटीन डिफेक्टिव का मतलब हुआ या तो डिपेंड्स अपॉन कौन सा इसमें फोटोरिसेप्टर पिगमेंट डिफेक्टिव होता है या म्यूटेटेड होता है। तो उसी की वजह से उसी से क्या होगा कि न तो रेड कून फिर फंक्शन कर जाएगा प्रॉपरली, न ग्रीन कून कर जाएगा फंक्शन प्रॉपरली, न तो ब्लू कून कर जाएगा फंक्शन प्रॉपरली, बिकॉज दे आर ऑल द फोटोरिसेप्टर पिगमेंट। ठीक है ना। तो लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। ना अभी जो कलर ब्लाइंडनेस है इससे फिर से हम क्या लेंगे, इसकी हम फिर से इनहेरिटेंस पढ़ेंगे क्योंकि वही हमें बेसिकली पढ़ना है। तो इनहेरिटेंस में फिर से हम लेंगे, जैसे हमने उसमें कंडीशन फर्स्ट लिया या केस फर्स्ट लिया, हम मैटिंग करवाते हैं किस किस को, फिर से नॉर्मल मेल को, ठीक है ना, विद दैट ऑफ द कैरियर, जैसे हमने उसमें लिया कैरियर फीमेल, ठीक है ना। तो नॉर्मल मेल का फिर से क्या मतलब हुआ बेटा, इट मीन्स इट इज एक्स एंड वाई, ठीक है ना। इट इज मैटिंग विद द कैरियर फीमेल मीन्स एक्स एंड एक्स, बट इट इज हैविंग वन कॉपी ऑफ द जीन म्यूटेटेड और वन कॉपी ऑफ द जीन डिफेक्टिव, ठीक है ना। सो गो फॉर द क्रॉसिंग, सो इट विल बी एक्स एंड एक्स, हियर इट इज दिस जीन एक्स, ठीक है ना। सो सेकंड अब ये वाला इसके साथ करेगा, सो इट इज एक्स एंड एक्स, ठीक है ना। फिर एक्स और वाई आएगा, इज वेरी इजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी आएगा, फिर ये एक्स और वाई, ये वाला हेल्दी होगा। अब देखिए ये आ गया आपको 4 ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। तो ये क्या है, फिर से ये आपके डॉटर है, तो ये कैरियर CD, कैरियर, अब मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ आपको, कैरियर डॉटर इट इज 25%। कैरियर हमेशा याद रखो, इसी में आपको कंफ्यूजन होता है। कैरियर का मतलब हुआ एक कॉपी ऑफ द जीन डिफेक्टिव है, लेकिन दूसरी कॉपी ऑफ द जीन जो है वो हेल्दी है। तो वो हेल्दी वाला जो जीन होगा वो नलिफाई कर जाएगा, वो खत्म करेगा उस वाले म्यूटेटेड जीन के इफेक्ट को उसको खत्म करेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं कैरियर उसी को बोलते हैं। तो ये वाली क्या है इधर, ये बेटा है नॉर्मल डॉटर, फिर से क्या है 25%। ये थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, ये है आपका देखिए अफेक्टेड सन कितनी 25%, ठीक है ना। तो ये बोलो क्या है बेटा, ये आपका है बेटा नॉर्मल सन, ये नॉर्मल सन क्या है आपको 25%। जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस में, जैसे हमने उसमें हीमोफीलिया में पढ़ा, खाली वहाँ मैंने सी से डिनोट किया उस वाले जीन को जो डिफेक्टिव है, वहाँ मैंने उसको डिनोट किया एच से, तो यहाँ पर मैं उसको डिनोट करता हूँ सी से। सी का मतलब हुआ कलर ब्लाइंडनेस जीन इज बेसिकली डिफेक्टिव। तो फिर से देखो ये कलर ब्लाइंडनेस है 25%, ये कैरियर है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। लेकिन आप देखो ये अफेक्टेड पर्सन, इसका मतलब 25% प्रोबेबिलिटी होती है जब भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हो जाएगी, याद आप रखोगे हमेशा, तो 25% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपके सन जो होंगे वो डिफेक्टिव हो जाएंगे। 25% ओवरऑल इसकी प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि आपके 25% ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो डिफेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन कौन से वाले, सन्स, बिकॉज यहाँ पर आपका डिफेक्ट किस में होता है, मदर में, तो मदर में सीधे जाके जाएगी किसमें, आपके सन्स में। सो इज द फर्स्ट कंडीशन, जस्ट लाइक द केस ऑफ द व्हाट वी कॉल एज द हीमोफीलिया। दूसरी कंडीशन फॉर एग्जांपल ले ले, अब फॉर एग्जांपल हम लेंगे नॉर्मल मेल को, फिर से नॉर्मल मेल को लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर हम लेंगे अफेक्टेड फीमेल। अब जरा देखिए, तो नॉर्मल मेल का क्या मतलब हुआ, इट इज एक्स एंड वाई, नॉर्मल मेल, नो जीन इज डिफेक्टिव, इट इज मैटिंग विद अ फीमेल विच इज अफेक्टेड का मतलब हुआ एक्स, अफेक्टेड का मतलब हुआ ये जीन भी यहाँ पर डिफेक्टिव है और ये वाला जीन भी बेटा यहाँ पर डिफेक्टिव है, ठीक है ना बेटा। तो आप क्रॉस के लिए जाओ आप, तो ये एक्स इसके साथ करेगा, तो ये यहाँ पर एक डिफेक्टिव होगा। पहले इसको करना पड़ता है इसके साथ, फिर इसी को करना पड़ता है इसके साथ, आप गलत कर लेते हो। फिर एक्स को फिर इस वाले वाई को, इसको आप इससे करोगे, फिर इसी वाई को आप इससे करोगे, तो इट बिकम्स इजी। सो एक्स एंड एक्स, सो नेक्स्ट कंडीशन इट विल बिकम एक्स एंड एक्स, ये यहाँ पर सी होगा ये वाला, ठीक है ना। अब ये वाई इसके साथ करेगा, तो अब लिख लेते हैं हम एक्स एंड वाई। अब ये वाला एक्स जो है यहाँ पर डिफेक्टिव है और ये फिर से इसके साथ जाएगा एक्स एंड वाई, ये यहाँ पर भी एक्स आपका है म्यूटेटेड, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए फिर से, ये क्या है, ये कैरियर डॉटर है 25%, ये क्या है फिर से कैरियर डॉटर 25%, ये क्या है यहाँ पर बेटा अफेक्टेड सन 25%, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है बेटा, ये भी आपका है अफेक्टेड सन, ये भी बेटा क्या है 25%। इसका मतलब है यहाँ पर आप लिख सकते हो 50% सन जो होते हैं आपके वो अफेक्टेड होते हैं,
ठीक है ना। 50% सन इज इफेक्टेड तब जाके होंगे जब डिजीज होगी किसमें, मदर में। अगर मदर डिजीज है तो वो अपनी जो डिजीज है कैरी करेगी हर एक सन को। देखिए अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, और डॉटर जो भी होगी, डॉटर भी क्या होंगे, वो नॉर्मल होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, ये इसका मतलब है 50% आपके डॉटर जो होंगे वो बेटा सी होंगे। सी का मतलब होगा वो कैरियर होंगे, ठीक है ना। नंबर 3 कंडीशन, अब जरा देखिए, अब क्या कर लेते हैं अब कर लेते हैं हम अफेक्टेड मेल को कर लेते हैं किससे, कैरियर फीमेल से बेटा, कैरियर फीमेल। अब देखो अफेक्टेड मेल को आप कैसे डिजिग्नेट करोगे, इट मीन्स इट इज एक्स, इट इज वाई, हियर द जीन इज डिफेक्टिव, इट इज सी मीन्स कलर ब्लाइंडनेस जीन, ठीक है ना। नाउ कैरियर फीमेल मीन्स एक्स एंड एक्स, दैट मीन्स only one gene is here, defective, ठीक है ना। another one is normal gene। so इसको आप फिर से क्रॉस करो तो ये जाएगा x and x, तो ये भी C है यहाँ पर, ये भी C है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये x यहाँ पर C है तो ये जाएगा किसके साथ, x के साथ, ठीक है ना। अब ये वाला y करेगा क्रॉस तो ये इट विल बिकम x and y, तो ये यहाँ पर आपका C है तो ये y अब इसके साथ करेगा तो x and y, इट इज द नॉर्मल। अब देखो जरा ये क्या है आपका, ये है आपकी अफेक्टेड डॉटर, 25% अफेक्टेड डॉटर, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर क्या है बेटा, ये फिर से फीमेल है, ये डॉटर है आपकी, तो ये क्या है, ये कैरियर डॉटर है, 25%, ठीक है ना बेटा। अब ये क्या है यहाँ पर, ये आपका अफेक्टेड सन है, अफेक्टेड सन कितना है 25%, ये देखिए यहाँ पर ये डिफेक्टिव जीन है। अब ये वाला जो है क्या है, ये नॉर्मल सन है, नॉर्मल सन का मतलब हुआ 25%। अब फिर से देखो वही फिर से लॉजिक है। अब यहाँ पर फीमेल में डिजीज है, सॉरी यहाँ पर आपके फादर में डिजीज है, तो वो फादर अपनी डिजीज जो है वो किन को ट्रांसमिट कर रहा है, वो डॉटर को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना। नो डाउट इट कैन आल्सो ट्रांसमिट दिस डिजीज टू द सन, बट हियर द कंडीशन इज दैट हियर द फीमेल इज आल्सो व्हाट यू कॉल एज दिस कैरियर फीमेल, ठीक है ना। सो व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन an affected male with that of the carrier female, you will get the 4 offsprings. Out of those 4 offsprings, 25% among the daughters they will become the affected, while the 25% daughters they will be the normal but carrier daughters, and 25% sons they will be the affected, while as the 25% sons they will be the normal. Thank you dear students.